There is a C panel. In the C panel, there is a file manager. Go to the public.html and upload the file HTML file, and you can see their reflection in the website. Okay, some points are noted. When we give page name, there is a difference in CMN and HTML. Okay, when we create a home page, then in the CMS, the simple URL is www.xyz.com, but in the HTML format, www.xyz.com/index.html. Okay, there is a small note. When you give this name, then it is considered as home page, and rest of the pages are internal pages. Like when we talk about SEO, in the case of SEO, in the case of CMS, xyz.com/SEO, and in the case of HTML, xyz.com/SEO.html. Okay. Now move to the next topic. What is sitemap? A sitemap is a file where you provide information about the pages, videos, and other files on your site and the relationships between them. Search engines like Google and this file is to crawl your site or more efficiently. A sitemap tells Google which pages and files you think are important in your site, and also provide valuable information about these files. For example, when the page was last updated, and any alternate language version of the page. Okay, you can use a sitemap to provide information about a specific types of content on your page, including video, image, or news content. For example, a sitemap video entry can specify the video running time, category, and age appropriateness rating. A sitemap image entry can include the image, subject matter type, and license. A sitemap news entry can include the article title and publication date. Okay. What are XML? Extensible Markup Language Sitemaps. An XML sitemap is a file that lists a website's important pages, making sure Google can find and crawl them all. It also helps search engines understand your website structure. You want Google to crawl every essential page of your website, but sometimes page end up without any internal links pointing to them, making them hard to find. A sitemap can help speedy up content discovery. Okay. What are HTML? Hypertext Markup Language Sitemaps. And HTML sitemaps is an HTML page on which all sub pages of a website are listed. It is usually linked in the footer of a site and is therefore visible of all visitors. In contrast to XML sitemaps, HTML sitemaps are mainly created for users as they help to them to get an overview of the structure of your site and navigate through all the sub pages. Visually, an HTML sitemap resembles a navigation bar where all tabs are open and where you can click on each link to get to the corresponding sub page. How to generate sitemap? Open XML sitemap generator, then submit your website URL, view sitemap details, and then download. Save as sitemap.xml. This is compulsory. And then upload cpanel file manager public.html, and after uploading check www.xyz.com/sitemap.xml. Okay, now move to the next topic, SEO. Yoast SEO is one of the most widely popular WordPress plugin around. It's easy to understand why. Whether you are running a personal blog or you are an SEO professional managing a website or for a client, Yoast is a powerful tool that can help you make your site as search engine friendly as possible. Yoast SEO is a WordPress plugin that improves your website's ranking on search engine by helping you optimize your site content and keywords. A lot of what Yoast SEO does is automated, but still need your input and some planning.
Okay. Well, I think I cover all the topics of yesterday class. I think if anything left, then let me know about it. Thank you guys. Thanks for listening me. Have a good day. Thank you very much. That was a very professional one, Mr. Saf. Thank you, sir. So, uh, so you wrote somewhere, or it like you are Sir, you wrote somewhere and reading it, or what? so it's a bulletin point like the process of the submission, uploading, and Mm, as it is, sir, explanation is mine. that's very good. Saurabh, please give him 10 now. मैं मार्क्स आजकल बहुत दे रहा हूँ ना. Thank you, sir. Again, Mr. Pandey will come and will say that, Shabaz, what is happening? Dimple and me both are giving a lot of marks. Well, guys, how are you all? सब सुबह सुबह उठ के ऐसा लगता है कि बस सबके 12 बजे हुए हैं. आई कैन सी द फेसेस. अनुराग, तीन छुट्टी पे जा रहे हो क्या? हेलो. नहीं सर. Yes, Anurag, you are going somewhere. I got your mail. I just saw हाँ that यस you सर. want to. Yes, हाँ yes. यस What सर. happened? 16 को सर थोड़ा सा फैमिली फंक्शन है तो मैं ट्रैवल करूँगा. So you will not be attending the class. हाँ सर. 16, 17, 18 क्योंकि मोहसिन सर ने बोला तो अच्छा, मे बी आप तब तक क्लास 16, 17, 18. Okay. Probably कोशिश यही करेंगे, ओवर हो जाएगा. हाँ सर. मतलब इन केस अगर नहीं होती तो मैंने श्योरिटी के लिए सर कर दिया था. Okay, that's fine. That's fine. Okay. हाँ यस सर. Okay, so guys, वैसे अक्षय प्रकृति कहाँ गए ये लोग? है सर यहाँ पर? अक्षय का नेटवर्क आज काफी ज्यादा वीक है. उसने मेरे को टेक्स्ट किया अच्छा, था. weak है. गुड मॉर्निंग सर. ही इज Very लाइक good morning, जॉइनिंग प्रकृति. एंड उसका जॉइन Okay. एंड लेफ्ट हो रहा है सर. और सर एक और छोटा सा Join. पॉइंट था कि बहुत सारे लोग का कैमरा ऑन रहता है बट नेटवर्क की वजह से वो हमें शो नहीं करता है सर. अच्छा 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 अच्छा, ये भी है क्या? मेरा मेरा शो करता है. सर कभी कभी आपका भी चला जाता है सर. Guys, you won't believe it. मेरे घर में वो बाढ़ होता है ना, बाढ़ बाढ़ आने वाली है. एंड वी आर वेरी, और पानी बढ़ रहा है एंड वी आर वेरी नियर टू द यमुना एक्चुअली. और आई एम लिविंग नियर टू द यमुना एंड वी आर वरीड अबाउट इट. एमएल कॉन्वेंट करेला बाग. और सिग्नल की बात करें तो सबसे ज्यादा आउटस्कर्ट में मैं ही रहता हूँ. तो सी दैट हाउ आई एम मैनेजिंग ऑल दैट. गेटिंग माई पॉइंट. तो बट मेरे प्रोफेशनलिज्म में और मेरे क्लासेस में कोई कमी नहीं आएगी. बाढ़ आए, जिंदगी इधर से उधर हो जाए, अगर इंटरनेट आ रहा है, लैपटॉप पास में, तो क्लास ठीक है. अच्छा प्रकृति, भी तुम्हारे घर में भी बाढ़ आ रही है? प्रकृति, जी सर. तुम्हारे घर में भी बाढ़ आ रही है क्या? सर बाहर नहीं सर, पर मेरा एरिया जो है ना, मेरा जो फ्लोर है सबसे नीचे वाला है, यहाँ पे भी सिग्नल की बहुत दिक्कत रहती है. नहीं तो क्या आप कहाँ रहती हैं? इलाहाबाद में रहती है ना? यस सर. यार इलाहाबाद इतना इतना छोटा सिटी है, 5 किलोमीटर में खत्म हो जाता है. अब कानपुर की तरह तो बड़ा नहीं है वो, राइट? सर कानपुर वाले Okay. आपको याद कर रहे थे सर. हाँ, सर वाराणसी विजिट हो गया, इलाहाबाद विजिट हो गया, कानपुर में नहीं हुआ सर. मैं बस में जा रहा हूँ कानपुर में ही, बिल्कुल आ रहा हूँ. बनारस हो गया, इलाहाबाद में भी कहाँ जाता हूँ, पूछो बच्चों से. सबके साथ इक्वल रहेगा, ठीक है. मेरे पास एक तराजू है, मैं तोलता रहता हूँ ऐसे करके कि हाँ यार, ये जो बच्चे हैं इनके पास इतनी बार गया है, हमें इतनी बार गया, तो I'll come guys, right? Okay guys, so problem, do you have any problems related to the classes which I took on tomorrow? हाँ, किसी कोई प्रॉब्लम? सी पैनल ठीक हो गया आप लोगों का? प्लीज सर लेट मी नो. यस सी पैनल ठीक हो गया है. क्या हो गया था सी पैनल में मैम? सर वो जो आपने बताया था ना, एक बागी में 3-4 अपलोड कर दिया था. मैं मना कर रहा था कि सोनाली, नहीं ऐसा नहीं. सोनाली ने तो बस सर लेट शो हो रहा था और उस टाइम जब सर अभी ठीक हो गया है. सर मुझे एक चीज अभी भी नहीं आ रही, सारी सर्विस को एक ही डोमेन में कैसे फिट होगा सर? हाँ बच्चा, मैं बता रहा हूँ भाई. आज उसी का प्रैक्टिकल करते हैं. कौन शेयर करेगा? साइट मैप बता दिया है, साइट मैप को भी अपलोड करना है. किसी ने किया साइट मैप को अपलोड? आज काफी कुछ करते हैं. चलिए आज 1 घंटे में तो एकदम अच्छा था. आज
प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत थ्योरेटिकल क्लास होगी, ये होता है वो होता है। नो, आई वांट कि आप लोग कोई शेयर करें मेरे को स्क्रीन एंड लेट मी शो यू समथिंग हियर नाउ। कौन शेयर करने वाला है भाई? अमन तुम्हारा बन गया है तो शेयर कर दो। अमन फॉर्म बनाना थी। नहीं सर, रावत। मिस्टर रावत प्लीज मूव ओवर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं लैपटॉप से अभी ज्वाइन हूँ सर, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम। लैपटॉप डिस्चार्ज है और लाइट थी नहीं, तो बस चार्ज लगा है, आधे घंटे में चार्ज होगा तब ही हो सकता है सर। चलो सोनाली तुम ही कर दो बेटा। ओके सर। कोई और है? बनारस से, कानपुर से कोई है? कोई है? तो देखिए किसी ने होमवर्क नहीं किया। अच्छा, होमवर्क किसी ने नहीं किया क्या? चलो बताओ भाई, सौरभ सरकार, मिस्टर सरकार, लेट मी Yes, नो sir. हाउ मेनी ऑफ यू आर डन विद द होमवर्क। आई बिलीव सर, मैं लीडर से अपडेट ले लेता हूँ सर, अगले 5 मिनट में आपसे आपको बताता हूँ सर। लीडर कम फॉरवर्ड आ जाए। लीडर, टीम ए लीडर, क्या हुआ भाई होमवर्क? यस सर। सर मेरा होमवर्क काफी हो गया है, मेरा लैपटॉप खुलने का बहुत इशू हो रहा है। चार्जर में लगा तो बैठी हूँ बट खुल नहीं रहा है। मैं फोन से ज्वाइन हूँ सर। तुम बोल कौन रही हो? शिफा बोल रही हो? कौन बोल रही हो? कौन? मैं शाली बोल रहा हूँ। सोनाली बोल रही You're not है। audible. सोनाली की आवाज नहीं आई। सोनाली के समझ में नहीं आ रहा है, उसका इमेज थोड़ा सा वो हो रहा था। हाँ सोनाली, आपका लैपटॉप खराब है? नहीं वो खुल नहीं रहा है सर, हमको हैंडिंग प्रॉब्लम हो रही है, खुल ही नहीं रहा है, बस नहीं हो रहा है। किया है आपकी मैंने टीम ने होमवर्क किया है? टीम ने होमवर्क किया है? लेट मी चेक सर, समवन है। टीम बी बताइए, आप अपनी टीम का चेक कीजिए। टीम बी। Yes sir, good morning sir. हियर प्रकृति, योर टीम आर डन विद द होमवर्क नाउ? या सर, सारे मेंबर्स नहीं पूरा कर पाए हैं सर। शिवम, अमन, मेरा, दानिश का हो गया है सर। सौरभ आपका पता नहीं है मेरे को अपडेट, आपका हुआ है? सर हुआ है? मेरा ऑलमोस्ट है सर। लाइक आई देखो। एम वर्किंग ऑन द ब्लॉक पेज सर। मैं ब्लॉक क्लाउड एक देखो, सबसे ज्यादा खूबसूरती क्या है इस फॉर्मेट की कि लीडर भी सीआर को हैंडल करता है और सीआर लीडर को हैंडल करता है। सॉरी सर, सर एक्चुअली आपकी वॉइस चली गई थी सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस फॉर्मेट की खासियत ये है कि लीडर सीआर को हैंडल करता है और सीआर लीडर को हैंडल करता है। सर हो गया था, बट उसमें लाइक लास्ट में जो है मुझे एनसी वाली रिपोर्ट सेंड करनी थी, तो उसको मैं बना रहा था सर, जर्नल मीटिंग वाली चलिए। एनसी की रिपोर्ट सर। कोई नहीं, चलिए एक काम कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। मिस सोनाली ने शेयर कर दिया है, चलो कर ही लेते हैं काम। चलिए मैम, खोलिए अपना पिटारा, खोलिए अपना सी पैनल। सर ये पब्लिक HTML। ओके, फर्स्टली शो मी ऑल द पेजेस। सर ये अबाउट है। बेटा दिख नहीं रहा आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा बच्चा? सर नहीं आ रहा है अभी? नहीं आ रहा है, नहीं आ तो रहा है, शेयर किया हुआ दिख रहा है, लेकिन आप जो बता रहे हो वो नहीं दिख रहा है। देखिए इधर, एक सेकंड सर। हाँ अब आया। चलिए अब आ गया सर चला गया। चला गया। ये सर अभी शो होगा, हो रहा है सर? हाँ जी सर ये अबाउट है, कंटेंट मार्केटिंग, ई कॉमर्स दिख रहा है, वेबसाइट। सबको दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। वही तुमने रिकॉर्डिंग में लगा रखा होगा तभी ऐसा हो रहा है। नो सर, नहीं मैंने नहीं लगाया आज। मुझे पेजेस पहले दिखाओ बेटा, पहले पेजेस दिखाओ मुझे। ओके। कितने पेजेस बनाए हुए? योर इंटरनल फोल्डर वेयर यू हैव पुट ऑल योर पेजेस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है सर। कहाँ है? अच्छा ये 10 पेजेस हैं आपके। ओके, क्या क्या नाम से देखो? index.html का है, गूगल एड्स बनाया है आपने, और क्या है? कंटेंट मार्केटिंग बनाया है, वेब क्रिएशन, एसईओ। index.html का है ये सर सबसे ऊपर। अच्छा ठीक है। अब चलिए एक एक करके सारे पेज वहाँ पे अपलोड कीजिए, एक एक करके करिएगा। अपलोड कर दिया है।
You can see here अपलोड सारे about. कर दिए आपने? जी सर, मैंने कर दिया था, कल ही कर दिया था एकेडमी दिखाइए में। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, मुझे दिखाइए। सर ये शो है इट। अबाउट। रुकिए रुकिए, अभी आपका स्लो चल रहा है सिस्टम, सिस्टम इज वेरी स्लो नाउ। सर अभी दिख रहा है ये अबाउट हाँ कंटेंट अब, ई हाँ कॉम। रुकिए रुकिए। अब मुझे इंडेक्स डॉट PHP इंडेक्स डॉट HTML आ गया, ठीक है। होम आ गया। अब होम भी बनाया है और इंडेक्स भी बनाया है आपने? क्यों नहीं ऐसा सर, होम ही ऐसा? इंडेक्स है। ये दो है ना, देखिए, होम डॉट HTML है और इंडेक्स डॉट HTML, एक को डिलीट कर दीजिए। नहीं सर, ये पहले से था सर, ये देखिए 2 जून 2018, ये क्या है समथिंग। 2 जून, हाँ ये पहले से था। हाँ सर। तो आपने 2 जून को डाला था क्या? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, मुझे पता भी नहीं है कैसे करते हैं। अभी तो मुझे नया नया पता चल रहा है, ये मैंने नहीं बनाया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अपनी वेबसाइट खोलें। सही है, दैट इज। सर आ रहे हैं? नहीं आ रहा? मतलब पहले नहीं आ रहा था क्या? नहीं सर, पूछ रही हूँ, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा, ओके। मुझे लगा कंफ्यूजन है, ओके। हाँ दिख रहा है बेटा ये। तो योर होम पेज is showing up right now when you upload the file with the index.html. Am I right, Sony? Is Sony? यस सर। Let's यस move सर। to the other page now. सर अदर पेज पे कैसे जाऊंगी? इस पे तो कुछ है ही नहीं। अब लिखिए यहाँ पे dgorganize.com लिखो। यस सर, लिखा है अभी। अब आगे स्लैश लगाइए। जी, एसईओ। अब ऐसी वाला पेज से, तो ऐसी वाला पेज खोले प्लीज। नॉट फाउंड। SEO लिखो बेटा। तो ये नो नो, लिखा है। SEO.html लिखो बेटा, SEO.html। HTML। सर अगेन नॉट फाउंड। SEO.html लिखो। अब ओके। देखो वहाँ फाइल है, SEO.html की फाइल है, देखो दिखाओ मुझे। यस सर, दिखा रही। सी पैनल में जाओ। ये सर, ये दैट इज। यस वेट। कहाँ है भाई? देखो SEO.html, जब कैपिटल से लिखेंगे और स्मॉल से सर्च करेंगे तो कैसे होगा ना, केस सेंसिटिव है। जाइए, अब जाइए SEO.html में, अब मैंने देख लिया, अब जाइए दिखाइए मुझे, फिर से लिखिए वहाँ पे। फिर डिजी के आगे लिखू ना? हाँ बेटा, उसी में डीजी ऑर्गेनाइज लिखो, उसके अंदर लिखो। नॉट फाउंड। एक सेकेंड। आ गया। हाँ, अच्छा तो ये है, ओके। यस मैम, यही है, सर यही है। देखिए, इमेज की बात जो बोल रही थी, ये साइड में ही आता है, इसको मैं सेंटर पे नहीं कर पा रही थी और इधर उधर नहीं कर पा रही थी। वो हम करवा देते हैं, हो जाएगा वो, नो नीड टू वरी। अब दूसरा पेज चेक कीजिए आप जरा। ओके। दूसरा पेज चेक करिए, ऐसे ऐसे ही सारे पेजेस चेक करिए, ऑडिट कीजिए। आ गया सर, सभी आ रहा है अभी तो। हम्म अच्छा सर, क्या इस पे वो भी मतलब होता है कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा स्मॉल लेटर में? ये सेंसिटिव है मैम, ये सेंसिटिव केस। आया नहीं है, देखिए। ईमेल, ये मैंने सर काफी पेजेस आ रहे हैं। वहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो ना, इंटरनल पेजेस के ऊपर।
सर इसमें ऐसा भी कि स्पेस वगैरह देने का, जैसे ये इसमें No. So what you have wrote over there, just check the file, right? वेबसाइट अब नाउ कॉपी पूरा कर लो इसको यहाँ से, वेबसाइट क्रिएटर, अब वहीं पे पेस्ट कर दो वहाँ पे। सर ये कॉपी नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक ऐसा आ रहा है। अब इसी तरह लिखो वहाँ पे, जैसे आपने लिखा हुआ वैसे ही लिखना होगा आपको, चेक कीजिए। जल्दी करो, फटाफट करेंगे तो मैं आगे बहुत कुछ पढ़ा दूंगा मैं। यस सर। रिकिता करने दीजिए, इनको करने दीजिए। अब इनका शेयर पे आप शेयर करेंगे, 5 मिनट उसमें लग जाएगा। ओके सर काफी पेजेस हो गए अभी, और दैट्स अप टू यू। सर ठीक है, इतना ही कर देते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, रिकिता कर दीजिएगा मुझे कॉल। हाँ सारे पेजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? आई एम जस्ट आस्किंग टू यू। यस सर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ओके, इसका कंट्रोल यू करो। ओके आगे सर। यही कोडिंग की थी मैंने। हाँ जी, कंट्रोल यू किया आपने, आपकी फ्रीज है स्क्रीन। यस सर शेयर हो रही है। बेटा फ्रीज है इसकी आपकी स्क्रीन। आई थिंक इसका इफेक्ट पड़ रहा है। एक सेकंड। आई एम नॉट एबल टू सी योर सोर्स पेज। सर एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। Just 1 second is over, Miss Sonali. सर अभी शो होगा। चलिए, क्या जादू कर दिया था आपने इसमें? सर वो दूसरे ईमेल से थी, और वो दूसरे ईमेल शायद इस वजह से इफेक्ट पड़ रहा हो। नाउ सर अभी शो हो रहा है ना? मैम शो हो रहा है सर, आप सबको शो हो रहा है क्या? मुझे तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है। सर। एक सेकंड, एक और चीज लास्ट, दूसरी सिम लगा देती हूँ। सब विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है आपकी सोनाली। यस सर शो हो रहा है। हो रहा है, आपको शो हो रहा है? तो यस सर कोडिंग आ रही है। कोडिंग आ रही है, अब मेरे को शो होना स्टार्ट हुआ है क्या? भाई हमारा सिस्टम ये स्लो चल रहा है क्या? सोनाली सोनी का ये देखो, एक मिनट ना, मेरा इंटरनेट खत्म तो नहीं हो गया? जैसे बड़ी खत्म हो गया, क्या बात है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। यस सर। जस्ट वेट, मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, बस एक मिनट। लेट मी रिचार्ज द सेम। दो मिनट लगेगा मुझे। ओके सर। मेरे को शो नहीं हो रहा बेटा, तो मैं एक मिनट। तो चलिए, ट्राइंग टू रिकनेक्ट। ओके चलिए, मैं आपको बता देता हूँ रिकनेक्ट हो रहा है। जस्ट वेट गाइस।
सर सर लेफ्ट हो गए हैं, सर आ रहे हैं। नेट उड़ रहा है, 2 MB 3 MB सोनाली, सोनी अपना 3 MB अभी उड़ वीडियो रहा ऑफ कर लो है। ना, वीडियो ऑफ कर लो। अमन क्या बोल रहे थे? हाँ सर। हाय, क्या बातें हो रही थी? मैं कह रहा था सर ओके, हाँ सोनाली अब दिखाओ बेटा, चलो। आई जस्ट रिचार्ज माय मोबाइल। यस प्लीज। यस सर। कहाँ है बेटा आपकी स्क्रीन? ओके दिख सर, रही है? अभी हो हाँ, रहे हैं। ओके। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू गाइस, अगर आप इस कोडिंग को समझ पा रहे हो, क्या आप इस कोडिंग को देख के समझ पा रहे हो? मैं सबसे ये सवाल पूछता हूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कोडिंग? ये सारी मैं कोडिंग तो पढ़ाई समझ हुई है रही मैंने, हूँ अब। ये सारी कोडिंग पढ़ाई हुई है। यस और नो? ओके, अब एक काम कर लो, वो जो कोडिंग थी जो आपने अपनी हेल्दी अड्डा क्या नाम है, प्रकृति की हेल्दी अड्डा खोलो तो ना, डिजी हो गई। डीजी ऑर्गेनाइज है तुम्हारा, तो वो हो गया ना, हेल्दी अड्डा खोलो। यस सर, आ रही आ गए सर। अब इसका कंट्रोल यू करो। अरे स्लो। अब इस कोडिंग को और सोनाली की कोडिंग को समझने की कोशिश करो, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों को पढ़ने की कोशिश करो। बहुत सारे डिफरेंस है सर, बहुत सारे मतलब differences। समझ। अच्छा, जो मैंने कोडिंग पढ़ाई थी, जो सोनाली वाली में जो कोडिंग थी और जो इसमें कोडिंग है, क्या सोनाली में कोडिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है? यस सर, रेल लगा है और रिलेशन कैनोनिकल में रियल लगाते हैं, हाँ। और लैंग्वेज इंग्लिश कर दिया इन्होंने पहले। अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे, दो चीजें मिसिंग है, जो आपको दो चीजें नहीं आती, अब आपको उसी को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस। अगर आप समझ पा रहे हो तो यस नो? यस सर। दो चीजें जो ऐसी हैं जो आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, जो आपने नहीं पढ़ी है। HTML तो आपने पढ़ लिया, राइट? आपको दो चीजें जो है यहाँ पे रीड नहीं कर पा रहे हो, वो है आपका CSS, ठीक है, जो स्टाइलिंग, ठीक है, जो आपको रिफ्लेक्शन देता है, और जावास्क्रिप्ट। ये दो चीजें यहाँ पे रीड नहीं है। This is a combination of three languages, that is the HTML, CSS and the JavaScript. Getting my point or not? ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला कि HTML रीड करता है, ठीक है, HTML से इंफॉर्मेशन लेता है, HTML से इंफॉर्मेशन लेता है। क्या गूगल का डिजाइनिंग से कुछ लेना देना है? पहले ये बताओ, मैं सबसे ये सवाल पूछता हूँ। नहीं सर। चलिए, अगर बगल में एक टैब खोलिए, व्हाई वी यूज जावास्क्रिप्ट इन द वेबसाइट, लिखो जरा, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। व्हाई वी यूज जावास्क्रिप्ट इन द वेबसाइट। ये आई नो सब, बट मैं दिखाना चाहता हूँ गूगल को। जावास्क्रिप्ट, व्हाई वी यूज जावास्क्रिप्ट इन द वेबसाइट। ये सब जो टेक्नोलॉजी है ना, तो लोग बिना इस टेक्नोलॉजी को समझे हुए, यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, अलाउ अस टू ऐड डायनेमिक बिहेवियर टू द वेब पेज एंड ऐड स्पेशल इफेक्ट टू द वेब पेज। इट इज मेनली यूज्ड फॉर वैलिडेशन पर्पस, की हेल्प्स टू एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स एक्शन, also enables interaction of website with visitors। ठीक है, अब इसको कंसाइज वे में अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट? और बगल में लिख लो व्हाई वी यूज CSS इन द वेबसाइट, ये भी लिख के आप दिखाएं, व्हाई वी यूज CSS इन द वेबसाइट।
CSS is a language describing the presentation of the web page, including colors, layout, and fonts. It allows one to adapt the presentation to different types of devices such as large screens, small screens, printers. CSS is independent of HTML and can be used with the XML-based markup languages. देखो ये जो चीज है, एक चीज तो समझ में आ रही है आप लोगों को, शायद आप लोग शायद समझ भी पाओ इसको, ठीक है, कि HTML और जावास्क्रिप्ट और प्लस CSS, जावास्क्रिप्ट और CSS जो है सपोर्ट कर रही है HTML को, ये सुनो, ये सुनो, am I right or no? For the best presentation and the connectivity, for the best presentation and the connectivity के लिए, मतलब अगर मैं इसको साफ लफ्जों में बोलूं कि ये यूजर इंटरफेस पढ़ाती है, राइट, अगर मैं इसको साफ लफ्जों में बोलूं कि दैट मेक्स योर वेबसाइट एंगेजिंग, हाँ बिल्कुल सही कहा, UI इनहेंस कर रहा है। अब मैंने आपसे क्या बोला दोस्तों, गूगल आता है, क्रॉलर आता है, फोटो खींचता है, टड़ाक, राइट, और इंफॉर्मेशन कहां से लेता है? HTML से लेता है। ऐसा नहीं है कि गूगल जो है डिजाइनिंग को वैल्यू नहीं करता, करता है, डिजाइनिंग को वो वैल्यू करता है, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, जो डिजाइनिंग है वेबसाइट के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन तो HTML से लेगा ना। Are you able to understand that or not? समझ में आप लोगों को आ रहा है? इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि आप डिजाइनिंग पार्ट जितना अच्छा कर लें और वेबसाइट में जितना अच्छा लिख लें, आप सिर्फ और सिर्फ यूजर को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको अच्छी रेलेवेंसी बनानी है तो आपको HTML में अपनी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर SEO मैनेजर को, ठीक है, जरूरी क्या है, SEO मैनेजर को HTML कोडिंग आना चाहिए, और CSS नहीं भी आता है और उसको जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती, तो कोई बात नहीं है। SEO मैनेजर जो होता है वो कहीं ना कहीं वो डिजाइनर नहीं होता है, डेवलपर नहीं होता है। बट मेरा ये जो मानना है, मेरा ये मानना है कि CSS की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, राइट। एक SEO मैनेजर को दोनों की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब मैं काम किया करता था दोस्तों, तो मेरे को कोडिंग समझने में 1 मिनट नहीं लगता था। ये कोडिंग क्या कर रही है, इसका एट्रीब्यूट है, और ये जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, और यहाँ पे CSS क्या काम कर रहा है, मेरे को एडिट करने में कभी प्रॉब्लम हुई नहीं वेबसाइट को बैकएंड में। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, 99% इन द मार्केट पीपल हु आर डूइंग द SEO, they don't know the HTML and they don't know the CSS and the JavaScript as well. 99%. तो इसका मतलब क्या निकल के आया दोस्तों? When you are moving to the market, you will be having the cutting edge, right? When your manager sits and he was not aware of the JavaScript, he was not aware of the CSS. So obviously when you are guiding him, so obviously that would be the plus point for you, right? तो इसका मतलब क्या निकला है, HTML को सपोर्ट क्या करता है, CSS एंड द जावास्क्रिप्ट राइट नाउ। और जब मैंने आपको HTML पढ़ाया, तो HTML को मैंने CSS के साथ नहीं पढ़ाया, मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के साथ नहीं पढ़ाया, मैंने सिंपल HTML आप लोगों को बताया कि हेड पे क्या होता है, बॉडी पे क्या होता है, एंड सिंपली फुटर पे क्या होगा। यस, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, क्रॉलिंग, देखो फॉर क्रॉलिंग CSS इज इंपॉर्टेंट। देखो सिंपल सी बात, इसको समझो एक बात को, आप जब कपड़ा अच्छा नहीं पहनोगे तो कोई आदमी आपसे बात करने आएगा। चलिए सड़क पे एक भिखारी घूम रहा है, लेट्स अस्यूम भिखारी इज रोमिंग ऑन द रोड राइट नाउ, यू विल बी विलिंग, आपको क्या विलिंगनेस होगी उससे बात करने की? नो।
वैसे ही जब क्रॉलर घूमता है मार्केट के अंदर तो वो ये चेक करता है कि भैया डिजाइनिंग अच्छी है, आर्किटेक्चर अच्छा है या नहीं है। उसकी बात तो इंटरेक्ट करेगा। जब इंटरेक्ट करे, चलिए मान लीजिए मैं खूब सूटेड बूटेड हूँ, ठीक है, अच्छे से एकदम पहन के रख, कोई 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 मुझसे बात करने के लिए आया तो मैंने हरियाणवी में बोला, ठीक है, कहा हो, तो अब फिर क्या होगा? ये कपड़ा अच्छा पहना हुआ है लेकिन बात करने की तमीज नहीं है। वैसे ही डिजाइनिंग चाहे जितनी अच्छी हो, HTML में अगर इंफॉर्मेशन आपने अच्छी नहीं दी, नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर कोई ये मैं डिस्कार्ड करूं कि भाई CSS और जावास्क्रिप्ट को गूगल रीड नहीं करता, गूगल सब कुछ रीड करता है, लेकिन वो ये बात कहता है कि इंफॉर्मेशन जो मैं दिखाऊंगा अपने सर्च इंजन के अंदर वो HTML वाली दिखाऊंगा। समझ में आया नहीं है? Are you able to understand that? Yes or no? Right? तो ये तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि इंटरनल पेजेस HTML के थ्रू विदाउट CSS और जावास्क्रिप्ट के आप कैसे पेजेस बना सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है? बिना CSS जावास्क्रिप्ट के एक वेब पेज, सिंपल वेब पेज कैसे बनता है? किसी को प्रॉब्लम है इसके ऊपर? प्लीज मुझे बताएं। नो प्रॉब्लम। कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम आ रही हो अभी तक? ठीक है, दैट्स फाइन। हेलो सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर स्कीमा टैग के लिए सर कौन सा कोडिंग यूज होता है सर? हाँ, स्कीमा टैग बेटा अभी पढ़ाया नहीं है। स्कीमा टैग मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं स्कीमा टैग पढ़ाता हूँ, ठीक है। स्कीमा टैग जो होता है वो गूगल टैग होता है, ठीक है। उसको हम गूगल, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ स्कीमा टैग होता क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आप किसी और शहर में जाते हो, ठीक है, तो किसी और शहर में आप जाते हो दोस्तों, तो ये बताओ कि जैसे आप फ्री होके अपने शहर में घूमते हो, क्या वहां पे आप फ्री होके घूम लेते हो? आप अपने शहर में जानते हो ना कौन सड़क किधर जाती है? यस सुनो, जैसे मैं इलाहाबाद में हूँ, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर कहीं पे भी ले जाओ, सीधा मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, राइट। और अल्टीमेटली अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई विल बी मोर कॉशियस अबाउट दैट कि मैं इधर उधर रूम करूँ या ना करूँ। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, गूगल क्या बोलता है कि जब आप HTML कोड बनाते हो, CSS फाइल के थ्रू अपना पेज बनाते हो या जावास्क्रिप्ट लगाते हो, तो हर एक डेवलपर की अपनी अपनी कोडिंग होती है, राइट। कॉलर ये बात कहता है कि भैया 100 वेबसाइट में कॉल करता हूँ, सबकी अपनी अपनी कोडिंग है, तो मुझे उस वेबसाइट को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो गूगल ने ये बात बोला कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें सेट कोडिंग दे रहा हूँ, जिसको मैं कह रहा हूँ स्कीमा कोडिंग, ठीक है। सारी वेबसाइट में वही स्कीमा, मेरे को वही टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, ऑथर टैग, ये सब चाहिए मुझे। तो मेरी कोडिंग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन डाल के रख दो अपनी वेबसाइट में, जब भी कॉलर आएगा वो फटाफट इन्फॉर्मेशन उठा के भाग जाएगा। स्कीमा कोडिंग होती क्या है? स्कीमा कोडिंग का मतलब होता है गूगल की कोडिंग। गूगल बोलता है भैया स्कीमा कोडिंग लगा दी तो अब मुझे तुम्हारे HTML टैग, PHP टैग, .NET टैग नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट के अंदर अपना टैग उठाऊंगा, ठीक है, और इंफॉर्मेशन लेके चला जाऊंगा। तुम्हारे टैग से मुझे मतलब ही नहीं है, खत्म बात। नहीं आया समझ में अभी भी? यस और नो? अब इसको कहते हैं स्कीमा। सर क्या एक बार रिपीट करिए ये कॉन्सेप्ट जो भी आपने बोला आपने। वेरी गुड मॉर्निंग। यस यस ये, हाँ सोनाली मैं रिपीट करता हूँ। हाँ जी, प्लीज आस्क, प्लीज आस्क, क्वेश्चन पूछो सर। प्लीज थोड़ा और इलैबोरेट कर दीजिए सर। अच्छा एलेबरेट कर दूं मैं? देखो, क्रॉलर एक AI है, ये मालूम है आप लोगों को? सर प्लीज थोड़ा और इलैबोरेट कर दीजिए। या डेफिनेटली क्रॉलर एक AI है, ये बात मानते हैं? यस। अब ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, करता तो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही काम करता होगा ना ये तो।
ये सुनो, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको भी पढ़ने में प्रॉब्लम होती होगी, एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होती होगी, ये सुनो। चलिए, जब हम कोडिंग करते हैं दोस्तों, तो कोडिंग हम कैसे करते हैं समझिएगा पहले। एक कोडर जो होता है, ठीक है, वो उसकी कोडिंग की स्टाइल अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली के अंदर रह रहा हूं और मैं नोएडा के अंदर हूं, नोएडा से मैं जाता हूं गुड़गांव, तो आई हैव टेकन दैट वे, लाइक मेट्रो वे मैंने ले लिया, एक मेरा मेट्रो वे हो गया। मैं रोज मेट्रो से जाता हूँ, ठीक है, और मेट्रो से मैं उतर जाता हूँ। एक ही सिंपल वे हो गया मेरा। अब किसी ने बोला यार कार से चलो, ठीक है, मुझे मेट्रो से रास्ता याद है, कार से नहीं याद है। यू वॉन्ट बिलीव इट, मैं कार से वहां पे कहीं ट्रेवल ही नहीं कर सकता। सब चीज का कनेक्टिविटी मैं मेट्रो से समझता हूँ वहां पे। गेटिंग माय पॉइंट? अब मेरे से कोई पूछेगा कि भाई अब मैं जा रहा हूँ द्वारका सेक्टर 7 में, मैं उससे बोलता हूँ कि सेक्टर 18 जाना, वहां से मेट्रो पकड़ना और द्वारका में सीधा उतर जाओगे, या येलो लाइन पकड़ लेना, ब्लू लाइन पकड़ लेना, वहां से भी वहां जाना है, वहां से तुम्हें वहां चले जाएंगे, खत्म बात। कुतुब मीनार जाना है मुझे, राइट। हाँ, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मेरा एक सेट कोडिंग है या नहीं है? आई हैव माई सेट कोडिंग, राइट। अब कोई मुझसे बोल रहा है, कोई मेरे पास आया है, मुझसे बोला कि शहबाज मैं 18 पे गया, सेक्टर 18 गया, 18 से सेक्टर 16 गया, फिर वहां से मैं मयूर विहार गया, मयूर विहार से फिर मैंने टेकअप किया अक्षरधाम की तरफ, अक्षरधाम से फिर मैंने जो है क्या नाम है मुड़ गया, मैं निजामुद्दीन की तरफ मैं मुड़ गया, निजामुद्दीन से फिर मैं इधर मुड़ गया। मैंने बोला भैया एक्सक्यूज मी, मेट्रो से बताओ मेरे को। कहाँ से बताओ? मेट्रो से। चलो भाई मेट्रो से बताते हैं। सीधा आप यहाँ से जाएंगे राजीव चौक, राजीव चौक से आप नीचे जाएंगे, वहां से ब्लू लाइन पकड़ लेंगे, ब्लू लाइन से आप वहां पे उतरेंगे, वहां से आप जाएंगे, खत्म बात। गेटिंग? ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइस, इसका मतलब क्या हुआ? गूगल क्या कहता है? गूगल ये बात बोलता है कि एक वेब पेज को बनाने के लिए 1000 HTML कोडिंग बन सकती हैं। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, जैसे अभी सोनाली बोले सर मैं मिडिल में नहीं कर पा रही, मैं इधर नहीं कर पा रही, उसमें क्या नाम है ये कलर नहीं आ रहा आ पा रहा। अब वो कलर जब हम बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो कलर को हम क्या करें? नंबर चेंज करते हैं कलर के, यस और नो? होते हैं या नहीं होते हैं? यस, कलर के नंबर चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर रहे हैं। तो कोडिंग कभी बहुत बड़ी कोडिंग ये सुनो, तो बड़ी छोटी कोडिंग हो गई, तो एवरी टाइम गूगल क्रॉलर विल कम टू योर वेबसाइट एंड विल स्टार्ट रीडिंग दैट कोडिंग, राइट। अब ये बात कहता है कि भैया ऐसा है, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि आपने एक चीज देखी है 20 बार और एक चीज देखी है 1 बार देखी है, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से कौन सी वाली चीज आप एनालाइज कर सकते हो? जो 20 बार देखी है या जो 1 बार देखी हुई है, राइट। अब गूगल को ये मालूम है कि भैया ये कोडिंग मेरी कोडिंग है, ठीक है, इस कोडिंग में किधर किधर कहाँ कैसे क्या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। तो 20 बार नहीं, 20,000 बार वो कोडिंग वो पढ़ चुका है वो। अब आपने क्या काम किया? अपनी वेबसाइट की कोडिंग जो आपने बनाई वो तो एक अलग बात है, साथ में आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है गूगल की कोडिंग के साथ एसिमुलेट करके अपनी वेबसाइट में डाल दी, राइट। अब गूगल ये बात बोलता है कि अगर आपने स्कीमा कोडिंग नहीं लगाई हुई है, ठीक है, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड योर कंटेंट, राइट। इफ यू पुट द स्कीमा कोडिंग, ठीक है, इट बिकम मोर इजी फॉर मी टू रीड द कंटेंट इन अ मोर एप्रोप्रिएट वे, राइट। तो स्कीमा कोडिंग को मैं जो कहता हूं वो ये कहता हूं कि स्कीमा कोडिंग इज अ गूगल कोडिंग एक्चुअली। गेटिंग माय पॉइंट? फिर हमको सिर्फ और सिर्फ स्कीमा कोडिंग उठाना है और वेबसाइट में डाल देना है, उसमें इंफॉर्मेशन अपनी डाल देनी है, दैट्स अ स्कीमा कोडिंग। हाँ जी प्लीज आस्क। सर आप ये कह रहे हो जैसे कि हम HTML यूज करते हैं, तो जब HTML के हेडर पार्ट में जो हम कोड डालते हैं वो सारे एट्रीब्यूट कंटेन करते हैं, जो भी एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं एट्रीब्यूट की, जो हम मेन कोडिंग अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे कुछ देर पहले बोला कि ये तो सिंपल कोडिंग की बात हो गई,
राइट जब आप इसको मर्ज करते हो विद द CSS एंड जावास्क्रिप्ट सो दैट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाती है तो हमको अभी अभी मैंने सोनाली से बोला तुम इसको रीड कर पा रहे हो, सोनाली बोला सर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड इट, राइट? when I move to the Sonali's page coding, so Sonali is saying that yes sir I am able to read it. So what does it mean? It means that कि आपकी जो वेबसाइट है सिंपल कोडिंग आपने पढ़ लिया, ठीक है, वैसे ही AI सिंपल कोडिंग पढ़ लेता है, ठीक है, बट वो कॉम्प्लेक्स कोडिंग को पढ़ने में उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स कोडिंग को भी वो पढ़ना चाहता है तो वो बोलता है भैया अपनी कॉम्प्लेक्स कोडिंग अपनी लैंग्वेज में मत लिखो, मैं आपको ऑलरेडी स्कीमा कोडिंग दे रहा हूँ, उसके अंदर अपनी लैंग्वेज को फिट कर दो वहां पे और हेड पे लगा। सर समझ आ गया क्लियर सर, थैंक यू सर। किसी और को प्रॉब्लम प्लीज आस्क। किसी और प्रॉब्लम प्लीज आस्क। सबको क्लियर है? गाइस देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जॉब तो आपको इसी में ही मिल जाएगी जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, चाहिए मार्केट के अंदर मतलब उठा के जॉब मिलेगी आप लोगों को। सर उसको हेडिंग सेक्शन में ही लगाएंगे सर कि बॉडी में भी लगा सकते हैं? बॉडी में लगाएंगे तो रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये तो दिमाग लगाने वाली बात है। बॉडी में कुछ भी लगाओगे तो उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, जब रिफ्लेक्शन आएगा तो क्या होगा, आपकी डिजाइनिंग खराब होगी। आप रिफ्लेक्शन उसका चाहते नहीं है, आप गूगल के क्रॉलर को पढ़वा रहे हो ना सिर्फ, तो कहाँ पे जाएगा? हेडिंग में नहीं जाएगा, हेड पे जाएगा। हेडिंग अलग होता है, H1 H2 H3 होता है। ओके सर। यस गेटिंग इश्यूज, मुझे बता इश्यूज है कोई इश्यूज है? नहीं है, चलिए ओके सो आगे 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 बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलाइए फिर, लाइए मुझे टेकअप करने दीजिए मुझे, ठीक है, आप वो ऑफ कर दीजिए, लाइए मुझे टेकअप करने दीजिए। सर वो मुझे वो पूछना था, जो बनाया है हमने सर्विस में, तो होम पेज पर नहीं आ सकता? वो होम पेज पर लाइक जैसे कैटेगरीज होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, सर्विस वाले पेज को आप index.html कर दीजिए। नहीं सर, मतलब इस पे जैसे हम लोगों ने मतलब जैसे पहले आता था सर्विस, हम लोग क्लिक करते थे सारे वेब पेजेस आते थे, वैसे अच्छा नहीं आता अच्छा, था। तो जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। अच्छा गेटिंग नहीं आया समझ। देखो मसला होता है कि HTML का मतलब ये नहीं होगा सिर्फ HTML सीख लिया और आपने पूरी वेबसाइट बना ली। जब आप CMS सीख रहे हो, CMS में क्या हो रहा है कि दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट एंड HTML and the CSS as well. That would be automatically changing from in the back end. So you no need to learn the HTML, CSS and the JavaScript. When you are working on the HTML website, you are making your own HTML website, so you have to learn JavaScript, you have to learn CSS as well. Getting my point? But मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अगर आप HTML सीख चुके हैं, ठीक है, तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट सीखना कोई बड़ी बात नहीं है और CSS सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो ऑफ दैट, ठीक है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उसको आप लोग एक काम करो, उसको आप जो है पूरा देखो, लेकिन अभी नहीं दूंगा, जब ये कंप्लीट कर लूंगा तब दूंगा, ठीक है। जब वो आप उसको देख लोगे फिर मेरे पास आओगे तो मुझे समझाने में आसानी रहेगी। समझ में आया नहीं आया? गेटिंग माय पॉइंट? ये थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा आप। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, CMS तो आता ही आता है, आपको HTML की कोडिंग भी आती है। अब जब आप क्लाइंट से बात करोगे, जब आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करोगे, तो वहां पे आपको कोई भी बीट करने वाला पैदा ही नहीं हुआ होगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, अगर ये दोनों चीजें आप और सीख गए तो। समझे आप? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो दिस विल बी हेल्पिंग यू लॉट।
ठीक है, ठीक है। तो आई वुड से दैट गाइस, अगर आप पूरी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो दो चीज़ों पे और कमांड करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस के ऊपर आपको और कमांड करना पड़ेगा। एचटीएमएल लमसम आ गई है, कोडिंग निकालना है, पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना, उसके अंदर इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना है, ठीक है। दैट्स द एचटीएमएल कोडिंग, राइट। दो चीज़ें और सीखनी है जो 7th 8th और 9th क्लास में सिखाते हैं। मेरे बगल में एक बच्चा है 11th में पढ़ता है, तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आ रही तो ही केम टू मी, उसके फादर मेरे पास, उसको पता लगा कि शहबाज हैं और ही इज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ही शी केम टू मी एंड उसने बायजूस की क्लासेस लेके रखी हुई थी जावास्क्रिप्ट एंड ऑल। सो आई टुक द क्लास और मैंने उसको 1 घंटा पढ़ाया होगा प्रोबेबली, ठीक है। और यू वोंट बिलीव इट, ठीक है, शी इज मास्टर इन इट। तो सर क्या हेड्स ऑफ सर, क्या आपने बता दिया। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ दोस्तों कि आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके आ जाए, ठीक है। इसके बाद वो बाकी सब काम मेरा है, ठीक है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर ने ये नहीं बताया, बताऊंगा, ठीक है। पहले HTML कर लो बेटा, जो मैं आपसे बोल रहा हूं पहले वो कर लो बस, ठीक है। पहले कमांड एक चीज पे कर लो, फिर हम दूसरे पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। मूव ऑन करेंगे उसको, राइट। चलिए आगे हम लोग। Okay, so what I was trying to tell you, I think you are able to see my screen now. So मैंने आपसे लोगों से क्या बोला दोस्तों कि अगर HTML वेबसाइट बनाते हैं, ठीक, वेबसाइट बनाना है तो आपको क्या करना है। मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि आपको नोटपैड खोलना है। नोटपैड में जाने के बाद आपको क्या कहते हैं, उसको नाम देना है। नाम कैसे देंगे, अगर होम पेज तो index.html, index.html या दूसरे इंटरनल पेजेस बना रहे हैं, दैट्स अप टू यू व्हाट पेजेस यू आर मेकिंग। उसके बाद सेव किस में करेंगे, ऑल फाइल्स में करेंगे। ऑल फाइल्स करने के बाद आप अपने डेस्कटॉप पे करिएगा सेव, डेस्कटॉप पे आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों उसी फाइल को कहाँ ले जाएंगे, अपने सी पैनल में, मतलब आप अपने सी पैनल पे ले गए। सी पैनल पे ले आने के बाद दोस्तों क्या किया आप लोगों ने, फाइल मैनेजर पे ले गए। फाइल मैनेजर पे लेने के बाद आप लोगों ने क्या काम किया, वहाँ पे public.html के ऊपर आपने इसको अपलोड कर दिया, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। फिर आप उसका रिफ्लेक्शन कैसे देखेंगे, जो आपकी वेबसाइट का नाम है www.xyz, ठीक है, xyz, ठीक है, .com, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट का होम पेज आ जाएगा। अगर आपने index.html लिया, ठीक है, या स्लैश ऐसे आ जाएगा आपको index.html आ गया, राइट। रेस्ट जो है, अगर आपने इंटरनल कोई पेजेस लिया दोस्तों तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, यहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, और स्लैश आएगा। जैसे SEO का पेज बनाया तो SEO.html आ जाएगा, राइट। उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ कोई और पेजेस लेता हूँ दोस्तों, तो वहाँ पे मैं सोशल मीडिया .html, तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सब एक्सटेंशन फाइल्स आ रही हैं .html की, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, राइट। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि भैया ये इसके एक्सटेंशन फाइल्स हैं। उसी हिसाब से मैंने आप लोगों से एक चीज़ फाइल और बताई थी दोस्तों, जिसका नाम था साइट मैप, ठीक है। साइट मैप इज द मैप ऑफ द वेबसाइट, मतलब वेबसाइट मैप इसको कहते हैं, इज इक्वल टू वेबसाइट मैप भी मैं इसको कहता हूँ, वेबसाइट मैप भी कहता हूँ इसको, राइट। गूगल ये बात बोलता है कि ये फाइल जो है हमेशा .xml में होनी चाहिए। मैं इसको रीड करता हूँ, ठीक है। अब कॉलर इज रीडिंग दिस फाइल, उनके प्रोटोकॉल में है ये। मेरा नाम शहबाज है, क्यों है, क्योंकि मेरे फादर ने रखा है उसको, उसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। तो कॉलर क्या XML फाइल रीड करता है, क्यों रीड करता है, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल में है, राइट। कॉलर इज रीडिंग दिस फाइल, ठीक है, टू नो मोर अबाउट ऑल पेजेस, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, URL क्या बनेगा, www.xyz.com/ ठीक है, sitemap.xml, ये आपका URL बन जाएगा, ठीक है।
अब इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मैंने आप लोगों को ऊपर दे दिया था, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है, मैनुअल और ये दोनों आपको मैंने बता दिए थे। ये मैनुअल और क्या, इसके थ्रू से आप ये काम कर सकते हो, राइट। एक्सएमएल फाइल, तो आप ये भी देख रहे हो कि HTML की एक अलग फाइल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। HTML भी एक्सटेंडेड क्या है, एक्सटेंशन फाइल है, और ये XML भी एक्सटेंशन फाइल है, बट दोनों का रूल अलग है, ठीक है। XML फाइल रीड हो रही है, ठीक है, साइट मैप को रीड कराने के लिए। HTML इज अ पर्टिकुलर पेज एक्चुअली, एक्सटेंशन फाइल दोनों है अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो। कितने लोगों को इतने में प्रॉब्लम है, और कितने लोगों को ये प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आई है, मुझे बताएं जरा सा। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आई है, मुझे ये बताएं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पक्का पक्का। That's very fine. नो प्रॉब्लम। ओके, कोई ऐसा बंदा जिसको इश्यूज है इस चीज को लेकर, कोई पूछे व्हाट इज साइट मैप, ठीक है। तो साइट मैप को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स अ वेबसाइट मैप एक्चुअली, ठीक है। एंड दैट इज इन द प्रोटोकॉल ऑफ द गूगल that caller will read the map in the XML file only, right? So that is why what we have to do, we have to generate this sitemap XML file in two ways. One is from the manual way, second way one is from the plugin way. Manual way is a best way for the same, because when you are not aware about the CMS or any PHP or .NET language, so when what you have to do, you just have to move to the cPanel, and through file manager there would be a folder called public.html. Through that you have to upload the sitemap.xml file, right? So how we are going to generate the same, we will be generating the same through the through the online tools, that is xml.sitemap generator, right? So through that, when we are downloading the same and uploading the same on the public.html website, so that would be reflecting in the main URL, right? So through that, when you have to recheck the same, so when you are writing down your URL /sitemap.xml, so that would be reflecting. So nextly what you have to do, guys, you have to move to the webmaster, ठीक है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, अगर यूज से कर रहे हैं या किसी से भी कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू मूव टू द सर्च कंसोल, ठीक है। सर्च कंसोल में जाने के बाद, ठीक है, आप इनवाइट करेंगे किसको करेंगे, क्रॉलर को इनवाइट करेंगे कि भैया आओ मेरा साइट मैप रीड कर लो। इनवाइट तो करना आपको आता ही होगा, ये सुनो, करना आता है। प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया? Why we are doing that process? Because एक रीजन है, we wanted Google crawler to read all the pages information. By that, he or she or miss, calling the same, right, and put the information in their database, right? When the Google is having the information, जब Google के पास information होगी, तो वही तो तभी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो वो क्या करेगा, लोगों को बताएगा। Am I right or not? Yes. That's good. चलिए, बहुत बढ़िया। तो इतना आप लोगों को डाउट क्लियर है दोस्तों? इतना आप लोगों को क्लियर है? कोई इसमें अभी तक कोई इश्यूज है तो मुझे बताएं। कितने लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैं ये बात करूं, पूछूं तो कितने लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है इसका? आज रोबोट टीएक्सटी फाइल पढ़ा दूं क्या, या इसका प्रैक्टिकल पहले करोगे? सर इंट्रो दे दीजिए रोबोट का, लाइक थोड़ा सा पता तो है बट फिर भी थोड़ा सा, चलो ठीक है, ताकि कल और क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है। रोबोट टीएक्सटी फाइल एक साइट मैप की तरह ही होती है दोस्तों, ठीक है। दिस इज वन मोर एक्सटेंशन फाइल एक्चुअली, राइट। ये साइट मैप होती है। साइट मैप को लिए क्रॉलर के लिए क्या बोला, ठीक है, क्रॉलर, ठीक है, रीड द इंटरनल पेजेस थ्रू साइट मैप, राइट। रोबोट
टैग क्या होता है, रोबोट टैग क्या होता है, डिफाइन करो रोबोट टैग, कौन डिफाइन करेगा इसको, कोई डिफाइन करेगा रोबोट टैग, एनीबॉडी? यस सर। यहाँ सो यस तो बहुत आ गए, प्रकृति, अक्षय और सोनाली नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई और बताओ? नो Yes, sir, तुम भी मैं नहीं करूँगा। करोगे प्रीति, कौन करता है? सौरभ दुबे, यस सर। या प्लीज डिफाइन व्हाट इज रोबोट टैग। वो टैग बेसिकली क्रॉलर को ये बताता है कि आपको कौन से पेज को फॉलो करना है और कौन से पेज को फॉलो नहीं करना है। कैसे काम करता है ये? सर जैसे अगर हमें किसी पेज को या किसी लिंक को फॉलो करना है तो हम उसमें क्या नाम से रोबोट टैग लगा दें एंड वो क्रॉलर को ये बताएगा कि हाँ कौन आपको इस पेज को फॉलो करना है, जैसे हमारा डू फॉलो लिंक एंड नो फॉलो। आंसर कभी भी करो, हमेशा ध्यान रखो उसके रूट से करो, रूट से करो। रूट का मतलब क्या हुआ? देखो मेरा आंसर देने का तरीका क्या है, जैसे किसी ने पूछा रोबोट टैग, रोबोट इज अ क्रॉलर टैग, वी आर टैगिंग व्हाट, वी आर टैगिंग टू whom? सर टैग का मतलब क्या बताया था मैंने, याद है? यस टैग का मतलब है किसी को भी मतलब किसी से कनेक्ट करना या टैग का मतलब किसी को कनेक्ट करना, तो इसका मतलब तुम यहाँ पे किसको टैग कर रहे हो? कॉलर को, एब्सोल्युटली यस सर। राइट। रोबोट टैग, कैनोनिकल टैग, क्या कर क्या रहे हो उसमें? यू आर टैगिंग यू नो HTML crawler, right? So robot tag, it's a tag. Through that we are tagging to whom? To the crawler, to know more about the web page that we have to follow or no follow the link or index or no index the pages. Am I right or wrong? Yes sir. Getting my point or not? खत्म आंसर। तो ये आप ये बताओ, अब हम ये बोल रहे हैं फॉलो करता है, नो फॉलो करता है, ये करता है, वो करता है, क्यों इतना डेप्थ में जा रहा हूँ? करता है, स्टोरी ठीक है, दैट्स फाइन। अब स्टोरी भी बोरिंग होती है तो लोग खुदा यार क्या स्टोरी सुने यार। पहले मेरा ये मानना है कि हमेशा स्ट्रैटेजी ध्यान रखिए, जब भी कोई आंसर कर रहे हैं तो पहले वन लाइनर कंप्लीट आंसर कर दें, उसके बाद उस पर स्टोरी बनाए। ये सुनो, ये सही रहता है या हम पूरी स्टोरी शुरुआत में पूरा सस्पेंस बना के चल रहे हैं, चेतन भगत की बुक बना रहे हैं? पहले वन आंसर में कर दो कि भाई ऐसा ये होता है, उसके बाद आप स्टोरी बनाए। सुनने में इंटरेस्टेड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको रोक देगा, खत्म बात। राइट। टैग का मतलब तो ये बताया ना मैंने, HTML टैग, ठीक है, गेटिंग? तो इसका मतलब क्या हो, रोबोट टैग का मतलब ये कहाँ लगता है सौरभ? सर ये कहाँ पे लगता है? रोबोट टैग सर हेडर पार्ट में लगेगा। हेडर क्या होता है सर? हेडर पार्ट बेसिकली वो पार्ट होता है जो कि केवल क्रॉलर के लिए होता है, यूजर के लिए नहीं होता है। तो इस वेबसाइट के अंदर अगर मैं ये पाथवेज खोलता हूँ तो देखिए मैं पाथवे हील्स खोल रहा हूँ, तो इसमें हेडर है ये? नो सर, ये हेडर नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? सर ये तो मेन्यू है, मतलब ये बॉडी का ही पार्ट है। ये हेडर नहीं है? नो सर। आर यू श्योर अबाउट दैट? कितने लोग कह रहे हो ये हेडर नहीं है? सर ये हेड है, हेडर तो सर यू नो बैक में दिखेगा इसकी वेबसाइट के। द हेडर अब हेड है वो। यस व्हिच मींस मेन्यू है। देखो कंफ्यूज, ऐसे ही इंटरव्यूअर तुम्हें घुमा देगा और तुम घूम के चले जाओगे। ऐसे होता नहीं, हम डांस करते हैं, किसी ने ऐसे उंगली पकड़ी और घुमा दिया और तुम घूम के चले जाओगे। बेटा वो हेडर है। कभी भी आप वर्डपैड यूज करें, वर्डपैड यूज करके दिखाऊं? वर्डपैड में अगर दो बार क्लिक करते हो ऊपर हेडर लिख के आ जाता है, वो रिफ्लेक्ट करता है सब। देखो तुम्हें दिखा, देखो हर चीज का रिफ्लेक्शन देखो ना, तुम देखो इस चीज को समझो कि तुम क्या पढ़ रहे हो। अब यार मेरा लैपटॉप जो है क्या बताऊं, मैं बनारस भेज दूंगा, मैं इसको नया ले लूंगा मैं। चलिए, तो आप अगर
नोटपैड वर्ड फाइल यूज करेंगे तो उसमें एक हेडर सेक्शन होता है, यस सर, होता है। हेडर होता है। हेडर पर क्लिक करके कोई भी इंफॉर्मेशन डालो तो सारे पेजेस जो नीचे भी पेजेस आएंगे वहां पे भी वो चीज दिखेगा। यस और नो? यस सर। फुटर में भी ये चीज है। यस और नो? यस सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने क्या बोला, ये पाथवेज का ये हेडर है या नहीं है? है सर। मैं अबाउट उसमें यूनिवर्सल जाऊंगा है। तो ये अगर मैं अबाउट उसमें गया तो क्या ये हेडर दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा सर। दिखेगा ना? राइट और रॉन्ग? तो हेडर दिखेगा। तुम बोल रहे थे कि अब वो कोडिंग हेडर पे जाएगी। हेडर द सेक्शन ऑफ द पेज और हेड इज व्हाट? इस हेड क्या है? हेड सर, हेड इज यूनिवर्सल, वो हर पेज में मिलेगा। तो मैं आपसे यही तो बात कह रहा हूँ, इसको यही तो समझना है आप लोगों को, यहीं पे फंस जाओगे। आपको आता ही सब कुछ है, ठीक है। अभिमन्यु को अंदर घुसना तो आता था, बाहर निकलना नहीं आता था, ठीक है। वही बात आप लोगों के साथ है, आता सब कुछ है लेकिन एक बेसिक सी चीजों में अटक जाओगे और इंटरव्यू तलाक खत्म। राइट, तो ये रोबोट टैग जो लगेगा वो हेड पे लगेगा। ये सुनो, लगेगा या नहीं लगेगा? अब चलिए, रोबोट टैग हेड पे लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो पेज को इंस्ट्रक्शंस देगा या पर्टिकुलर लिंक को इंस्ट्रक्शंस देगा? सर होल पेज को इंस्ट्रक्शन देगा। होल पेज। ये सुनो, चलिए मुझे पर्टिकुलर एक लिंक के ऊपर लगाना हो, नो फॉलो लगा पाऊंगा? सर ये सर उसके लिए फिर हम डू फॉलो लिंक का यूज करेंगे। कैसे हम लिंक कैसे बनाते हैं सर? हम लिंक कैसे बनाते हैं सर? डू फॉलो लिंक सर डू फॉलो लिंक का जो क्राइटेरिया उसको अगर मैंने क्वेश्चन आंसर्स राउंड ले लिया ना, क्या होगा? यस सर। सर जो फॉलो लिंक का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करेंगे, जो भी HERF सारी बातें मतलब करनी है लेकिन इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी है। एंकर टैग के अंदर सर डू फॉलो एट्रीब्यूट लगा देंगे, इतना कहने में क्या ज्यादा। एक आंसर जो है, अगर इंटरव्यू में पूछ लिया भैया कि डू फॉलो लिंक कैसे बनाएंगे, तो तुम ये बोलोगे अरे सर शाहरुख खान बन जाओगे, या बोलो भाई कि सर एंकर टैग के अंदर डू फॉलो एट्रीब्यूट लगा देंगे। क्या सही तरीका? सर एंकर टैग के अंदर डू फॉलो एट्रीब्यूट लगा देंगे। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, कैसे आंसर करना है? यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो ये जो अब ये डू फॉलो, अब ये आपको मैंने बोला कि ये टैग जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे रोबोट टैग बोला और मैंने बोला रोबोट डॉट txt। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इंस्ट्रक्शन रोबोट टेक्स्ट। अच्छा, क्या चीज तो बोले? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। ये इंस्ट्रक्शन टैग है, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन पेज। नहीं आया समझ में? आया या नहीं आया? नहीं, वन फॉर हेड वन फॉर बॉडी की मतलब ही नहीं है। सर जो टैग है वो हम यूज करेंगे उसमें हेडर पार्ट में, और जो txt है वो किसी पर्टिकुलर सॉरी हेड में। नहीं कंफ्यूजन नहीं सर, वो मुंह से निकल गया। और जो टेक्स्ट वाला रोबोट डॉट txt होगा, हम किसी पर्टिकुलर लिंक में यूज करेंगे जहां पे हम लिंक जूस पास नहीं करना चाहते, या फिर कोई ऐसा पार्ट है जो हम नहीं चाहते हमारा क्रॉलर उसे रीड करे। चलो एक काम करो, मुझे कल डिफरेंस बताओगे तुम लोग मुझे कि रोबोट टैग और txt में डिफरेंस क्या है, या मैं बता दूं? थोड़ा रिसर्च तो करोगे? नहीं सर। यस सर, श्योर सर। रोबोट टैग और txt में डिफरेंस बताओ और हर एक टीम से पूछूंगा मैं, ठीक है। टैग का मतलब क्या हुआ? अगर लिंक लेना हो तो उसमें रोबोट टैग कैसे यूज होगा,
ठीक है, पर्टिकुलर पेज में कैसे यूज होगा और रोबोट टीएक्सटी किस लिए यूज होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तुम लोगों को यह शायद समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, मैं इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका आंसर आप लोगों को नहीं आता होगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। सर बता दीजिए सर, हम लोग को कंफ्यूजन था सर इस चीज में। बता दें, चैलेंज नहीं लेना आप लोगों को। नहीं सर, थोड़ा यू डोंट वांट टू टेक द चैलेंज? हाँ पहले थोड़ा हम लोग रिसर्च करके आएंगे, उसके बाद अगर गलत हो तो आप तो हैं ही बताने के लिए सर। चलो बस ठीक है फिर। मज़र तुम मुझे फोन कर देना, तुम्हें रिसर्च नहीं करा तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा। सर ओके सर। सर मैं थोड़ा ट्राई करूंगी रोबोट टीएक्सटी का। हाँ सर रोबोट टीएक्सटी जो मुझे समझ में आ रहा है सर, मैं शेयर करूं? प्लीज मैम, प्लीज प्लीज। ओके सर। सर ये जो हमारा रोबोट टैग होता है वो सब बेसिकली टैग होता है जो हम अपनी बॉडी सेक्शन में या फिर हेडर सेक्शन में लगा सकते हैं। देखो बॉडी सेक्शन में जब टैग लगेगा तो वो एंकर टैग के साथ लगेगा और ऐसा एट्रीब्यूट लगेगा। यस सर। और सर जो हमारा ओके सर, और रोबोट टैग की पूरी कोडिंग हेड पे लगेगी। ठीक है, चलिए अब बताएं आगे। सर ये जो हमारा टीएक्सटी होता है बेसिकली, ये जिस पेज पे लग रहा है वो सी पैनल के लिए एक फाइल है। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये पेज पे नहीं लगता है टीएक्सटी। पेज से इसका मतलब ही नहीं है। अब बताओ। रोबोट टीएक्सटी, अरे भाई डॉट टीएक्सटी लगा रहा हूं तो ये बात तो साफ हो गई। नहीं प्रीति, तुमको मालूम है, ठीक है। सो जब डॉट टीएक्सटी लग गया तो इसका मतलब ये एक्सटेंशन फाइल है। यस सर। अब ये एक्सटेंशन फाइल का मतलब क्या है? अलग पेज बन गया उसका। यस सर। तो क्या जरूरत है अलग पेज की? मतलब अलग पेज बनाकर उसमें रोबोट टैग लगा। आप ये देखिए ना, अभी आपको हम दिखाते हैं एनडीएमआईटी का रोबोट टीएक्सटी दिखाते हैं आपको। एनडीएमआईटी लिए आ गया। हमने क्यों बनाया है? चलिए अब ये सवाल फिर से पूछता हूँ, व्हाई वी हैव मेड दिस। कभी कभी जिंदगी में सस्पेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, कोई इश्यूज नहीं है। बहुत कुछ बता दिया अभी, आंसर मैंने बहुत आंसर कर दिया। इफ यू वांटेड टू डू द रिसर्च करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। चलिए रोबोट टीएक्सटी, रोबोट टैग्स, चलिए डू द रिसर्च एंड मेक अ सस्पेंस। कुछ बचा नहीं है अभी ऑन पेज के अंदर, अब सब समराइज कर दूंगा मैं। स्कीमा कोडिंग और 301 की वो टाइम मिला, सीएसएस और जावा पढ़ा दूंगा, ठीक है। और आपका ऑन पेज कंप्लीट, ठीक है। गेटिंग? तो इसी वजह से स्लो चल रहा हूं मैं। हाँ दे दिया है, बिल्कुल प्रीति बोल रही दे दिया है तो मतलब दे दिया, ठीक है गाइस। क्वेश्चन मार्क नहीं रखने का है, ठीक है। चलो डू योर बेस्ट, लेट्स मूव ऑन टुमारो, लेट्स मीट ऑन टुमारो, राइट। अच्छे से करिए, बेहतर करिए, गुस्सा मत होइएगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और आपको अचानक समझ में आएगा कोर्स कंप्लीट, ठीक है। अभी देखिएगा सब कुछ, अभी ऐसे पता लगेगा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लेट्स मीट ऑन टुमारो, राइट। बाय बाय। बाय सर।